we'll talk about the financial planning for younger people up till 35 years of age. It's a very simple presentation I'm going to make today to all of you. Nothing earth-shattering, but I hope that this is going to give you all a structure as to how you can go about planning your finances. So I have prepared a presentation. Allow me to share that. There are a lot of jargons in the industry. There are a lot of financial planners who give you goal-based planning. ये कर लें, वो कर लें, बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें. Broadly speaking, your entire financial planning can be squeezed around these 5 broad principles, these basic issues: dying too early, contingency planning, living too long, financial obligations or capital expenses, and smart tax planning. लेकिन ये देखने में जितना सिंपल लगता है, इसको इम्प्लीमेंट करना, बैलेंस करना, इन सब एस्पेक्ट्स को, वो उतना ही मुश्किल है. Thankfully for a lot of army officers, the first 2 aspects, that is dying too early and contingency planning, ये काफी हद तक टेक केयर होते. And also to a large degree, the third one, which is living too long, for the permanent commission officers is also more or less quite well taken care of. इसके अलावा जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, they are the ones which one needs to look into, which is meeting the capital expenses and taking care of tax planning. So if one has to work on this financial planning for between the age of 25 to 35, they should have the last 2 aspects in terms of armed force officers as the first priority, and then the third one, which is living too long, उसके बारे में भी सोचा जा सकता है. So we'll moving on. Now, what happens in dying too early? Most of the armed forces officers, till the time they are serving, they are quite adequately covered by the group insurance. In case of Army, it is the AGIF. In case of Navy and Air Force, they also have their insurance schemes. For the officers who are moving out on PMR or who are getting released after a short service commission, they should do an assessment of their liabilities, and if need be, then they should, only if need be, not as a matter of कि लेना ही है, किसी ने बोला ही है, but if need be, खासकर SS officers अगर उन्होंने अपना अभी तक का proper financial planning नहीं किया होता है, so they should then go for a term insurance. Term insurance is the most economic way of protecting your family against the worst case scenario. So these officers, the short service officers, should carry, once they are moving out from the armed forces, they should look at carrying a term insurance for their security need. Next is the contingency planning or emergency planning. So basically speaking, there are only 2 kinds of emergencies. One is the medical emergency, second is loss of employment. Again, this is broadly covered usually for the serving officers. There is a good network of hospitals which the armed forces provide. Except for very rare circumstances, the hospitals are adequately equipped to cater to the medical emergency needs of the armed forces officers and their families. Others, yes, for SS officers, even after the armed forces officers retire, they get the ECHS facility, which in our analysis is a good scheme and officers should opt for it. For the short service officers, the ECHS is not exactly same as it is for the PMR and the superannuating officers. So they should look at obtaining another medical insurance, if need be, a family floater plan. And also because they are the ones who will be coming out and working in the corporate. So they should have a 6 months kind of a contingency fund, wherein if there is a loss of employment because of, let's say, external circumstances or something, तो वो लोग अपने लिए कहीं ना कहीं 6 महीने का एक बैकअप लेकर के चले, टर्म्स ऑफ हैविंग अ बैंक डिपॉजिट और थिंग्स लाइक दैट. इसके अलावा ज्यादातर जो पीएमआर एंड सुपर एनुइटिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा कंटिजेंसी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. दे आर कवर्ड बाय देयर पेंशन एंड पेंशन इज एडिक्वेट इवन इफ देयर इज अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड बाय गवर्नमेंट पेंशन, they should create a 6 months corpus for taking care of a loss of employment kind of a situation, and they should also carry a medical emergency wala insurance, because ECHS उन लोगों को पूरी तरह से sufficiently cover नहीं कर. Moving on to next. Now, before we move on to next, let's talk about what are the basics of investments. Whenever you are doing any investment करने से पहले सबसे पहला principle,
इज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। तो ये पहला उसूल है इन्वेस्टमेंट करना। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, प्लीज रिमेंबर लॉस ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रेमाइस, चाहे उसके बदले में आपको कोई कितना भी रिटर्न देने की बात कर रहा हो। ऐसी किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको घुसना ही नहीं चाहिए जहां पे वो आपको रिटर्न के नाम पर बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ सजेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग, बिटकॉइंस, शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट में आपको कई बार ब्रोकर्स बहुत प्रोमिस करते हैं कि हम आप 10%, 20%, 30% का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट इन्वेस्टर से एग्जिट करा देंगे। So these kind of transactions should be avoided as a part of your financial planning journey. Then next principle is an adequate rate of risk-free return. Each and every word here is important. Adequate rate of risk-free return. So the return should be risk-free. It should be adequate. बहुत ज्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। वो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होकर के नुकसान ही करते हैं। So a rate that beats inflation with about 7 to 8% points is a fairly good return. And if you are able to average that over a long period, you will make money. Broadly speaking, a 12 to 15% compounded annual growth rate, that kind of a return is a very good return on, is a good long-term return on investments. And that is what one should be targeting. उससे ज़्यादा aggressive होने में अक्सर ये देखा गया कि नुकसान ही होता है। I'll try and draw an analogy here. मान लीजिए आपको एक बहुत लंबी जर्नी पर जाना है, लेट्स से श्रीनगर टू चेन्नई। नाउ इफ यू आर ड्राइविंग टू फास्ट ऑन दिस एंड यू आर नॉट श्योर ऑफ द रोड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, आपकी व्हीकल की रोबस्टनेस कितनी है, आपका खुद का स्किल और स्टैमिना कितना है, तो बहुत तेज गाड़ी चलाने में द चांसेस आर दैट देयर वुड बी व्हीकल ब्रेकडाउन्स, वियर एंड टेयर, इवन एक्सीडेंट्स। On the other hand, if you are running at a steady pace, जैसे वो फौज में कॉन्वे मूवमेंट होता है, so if you are at a steady pace, even with average skills, you will be able to reach your destination on time. So that is what one should be targeting in terms of rate of returns. Now the third point is use of leverage judiciously. Leverage is when you are taking a loan for creating an asset. आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, उसे अपना एसेट क्रिएट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ढंग से लेवरेज को इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टीज खरीदने के अंदर लेवरेज को यूज किया और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ढंग से अगर आपने एग्जीक्यूट किया, स्पेकुलेशन नहीं करी, तो लेवरेज कैन एक्चुअली हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, बट इट हैज टू बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली। जहां इसके अंदर होम लोन इज अ लेवरेज, commercial property loan is a leverage. So when you're using other people's money to create financial operation, that is known as leverage. It's a technical term. The meaning is creating a word comes from lever, wherein you use a lever to pull more weight than what you would be able to otherwise. So leverage is when you're using, let's say, home loan. आपने 80% home loan लिया, so you have created a 80% leverage. If you have taken a commercial property loan of 60%, 70%, you have created a 60-70% leverage. Leverage can be very, very useful provided it is done properly. So leverage इस्तेमाल करने से पहले one should try and speak to people who are more knowledgeable in undertaking those kind of operations. Moving on, please understand what are not investments, and especially for young officers, people who are less than 35 years of age, young professionals. Debt funds are not instruments or investment classes. डेट फंड इज किसी को कर्जा देना जिसमें आपको ब्याज मिल रहा है, उसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है। एंड आपको अगर अपना वेल्थ क्रिएट करना है, एसेट बेस बनाना है, तो इससे अच्छा ये आप जो अपना एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डीएसओपी में रखिए, वहां से आपको ठीक ठाक सा पैसा आता है। डीएसओपी नहीं है तो पीएफ अकाउंट में रखिए। बैलेंस पैसे को इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में या कोई छोटा रियल एस्टेट लेने में जिसका आप ईएमआई दे सकते हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड इज ट्रेडिंग ऑफ एनी काइंड, वेदर इट इज इंट्रा डे, इंट्रा वीक, डेरिवेटिव्स, कॉल पुट ऑप्शंस, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। एंड 99% ऑफ द पीपल इन द लॉन्ग रन लूज आउट इन ट्रेडिंग। वेरी फ्यू पीपल, और फिर वो लोग जो पैसा कमाते हैं, दे डू ओनली ट्रेडिंग
एज देयर लाइवलीहुड, वो सुबह शाम वही करते हैं, दे आर ओनली डूइंग ट्रेडिंग। अगर आप वो कर रहे हैं तो अलग बात है, बट आप नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे वो फौज की कर रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट की कर रहे हैं, और ट्रेडिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आई कैन ऑलमोस्ट guarantee that you'll lose money. So don't do that. This is not an investment. Third, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, आपको बहुत बार खासकर ये आपको रियल एस्टेट में बहुत सुनने को मिलेगा, प्री लॉन्च के अंदर आप खरीद लीजिए, 1 साल में लॉन्च होगा आपका, तब तक 20-30% लगेगा, फिर आप फायदा कमा के निकल जाएंगे। आप ये वाली प्रॉपर्टी मेरे को बहुत अच्छा है, मैं आपको स्पेशल रेट दे रहा हूँ, इसमें खरीद लीजिए, देखिए यहाँ 6 महीने में इतना रेट मिल गया। These are all traps. They are all short-term traps wherein a gullible investor takes an entry, usually takes an entry in a property which is beyond their means to pay. पूरा उसको खरीदने का उनके पास पैसा नहीं होता है, एंड दे एंड अप सफरिंग लॉसेस बिकॉज वो आगे पेमेंट कर नहीं पाते, एग्जिट होता नहीं है, बिल्डर वहां से उनको इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देता है, सो इट बिकम्स अ मेस। सो दीज 3 transactions are definitely not investments, and they should be avoided at all costs by anyone, not just young people, by anyone. Now moving on, जो मैंने शुरू में कहा था कैपिटल एक्सपेंसेस, जिसको आज बड़ा आजकल बड़ा वो आफ्टर फैशन है, वो वेरी फैंसी नेम अबाउट दिस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, और वो पढ़ाना होता है तो अंग्रेजी मानना बहुत जरूरी है। इसमें बेसिकली हर इंसान की जिंदगी में ये 3-4 बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप गोल बेस्ड बना लीजिए, या ये कहें कि आपको करने हैं। पहला है घर खरीद। A home is one of the biggest expense you will make in your lifetime, and they should not be confused with property investments. अपना घर खरीदना। सेकंड इज अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बिकॉज उसमें आपको एक शॉर्ट पीरियड में 2 या 4 साल में थोड़ा बड़ा पैसा चाहिए होता है। थर्ड, हिंदुस्तान में अभी भी ये काफी प्रेवलेंट है, बच्चों की शादी के लिए यू नीड टू स्पेंड मनी। अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी में पैसा खर्च किया है, तो यू आर काइंड ऑफ कैरिंग दैट डेट विच यू हैव टू, अपने बच्चों की शादी में आपको वो करना पड़ेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, प्लीज फॉलो इट इन दैट ऑर्डर व्हेन यू आर डूइंग योर प्लानिंग। जब आप अपने पैसे को निवेश करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज ये इस ऑर्डर में जरूरी है, आप घर खरीदिए जितना जल्दी हो सकता है। ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन होगा, सबसे बेनिफिशियल फाइनेंशियल डिसीजन। डोंट बॉदर अबाउट लोकेशन, where will you settle, how do I know if I'll settle in X place or not, what rent will I get, etc. Buy a home and provide the first pillar of financial security and stability to your life. Even if you're not able to make any other saving, even if you're not able to cater for your children's higher education as of now, or their marriage, even if you are squeezed financially कि यार घर खरीद लिया तो बहुत टाइट पोजीशन हो जाएगी, इवन इफ यूर अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर एंड आगे आपको लगता है कॉर्पोरेट में पता नहीं मेरे जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, आई वुड स्टिल से बाय होम। ये आजकल वो, क्योंकि सब ज्ञानी लोग हैं, वो रेंट वर्सेस बाय, व्हाई इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और वगैरह, इसलिए बोलते हैं घर मत खरीदो। और ये जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग वाले बताते हैं घर मत खरीदो, ये खुद अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, आपको ये बरगला रहे हैं। एंड प्लीज, आई एम नॉट मेकिंग एनी रिकमेंडेशन दैट यू बाय इन गुड़गांव और नोएडा। वहां नहीं खरीद सकते, गाजियाबाद में खरीदो, धारुएड़ा में खरीदो, जयपुर के आउटस्कर्ट्स में लो, लखनऊ में लो, और देहरादून में लो, बट अपना एक पहला घर खरीदो। रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। बाइंग योर ओन होम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और कुछ नहीं है, कोई और अच्छी डिव जहां पर लोकेटेड हो, इफ यू आर अ फौजी ऑफिसर, सो दैट यू आर एबल टू गेट दोस कैंट सपोर्ट, अगर आप वहां रहने लगते हो, बीकानेर में घर खरीदो। बट आफ्टर 35, प्लीज डू नॉट रिमेन होमलेस। बाय अ होम इन बीकानेर, वर्क इन बैंगलोर, इट विल वर्क आउट फॉर यू। वंस यू हैव सेटल्ड दिस पर्टिकुलर टास्क, घर खरीद लिया, उसके बाद आपको इतना मेंटल पीस एंड सिक्योरिटी आएगा कि आपकी बाकी चीजें जो है, they'll start falling in place. You'll do well, you'll be comfortable mentally, you'll have peace of mind. Once this is done, depending on the finances, 1 साल, 2 साल, 4 साल, start looking at fulfilling the other obligations. हो सकता है आप आज इतना टाइट हो जाओ घर खरीदने से, आपके पास 500 रुपए भी स्पेयर करने को, कोई बात नहीं,
6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 500 रुपए, 1000 रुपए, वहां से आप एक सिप स्टार्ट कर दीजिए अपने नेक्स्ट टास्क के लिए। और बाकी जो बचे हुए 2 टास्क है, विच इज योर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, विच इज योर चिल्ड्रंस मैरिज, either of the two routes can be opted. One, go in a equity based systematic investment plan जिसमें आप महीना 15 दिन में irrespective अमाउंट डालना शुरू कीजिए। एंड इफ यू आर समवन हु इज कंफर्टेबल विद रियल एस्टेट, तो कोई छोटा रियल एस्टेट ले लीजिए, कोई 1 BHK ले लीजिए, कोई स्टूडियो ले लीजिए, कोई कहीं छोटी जमीन ले लीजिए, उसमें लोन ले लीजिए। तो सिप करें या एक छोटे ईएमआई बांधें, और उसके हिसाब से अपने बचे हुए 2 खर्चे जो है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर लीजिए। अपने बच्चों की पढ़ाई का गोल और उनकी शादी का गोल कर लीजिए। सो सबसे पहले घर खरीद लीजिए और उसके बाद में बैलेंस 2 चीजों को ईदर थ्रू एन SIP और थ्रू स्मॉल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कवर कर लीजिए। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इज व्हेन यू आर बाइंग अ होम, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग विच, एक तो अभी खरीद लो जिसने नहीं खरीदा, आज ही बैठ करके, अगर आप शादीशुदा है ये भी बैठिए, बातचीत कीजिए, समझे और घर खरीद लीजिए। बहुत ज्यादा उसके अंदर फैंसी होने की जरूरत नहीं है। अपना एक ऑफिस टाइप घर जहां आप अपने जिंदगी में रिटायर होकर के रह सकते हैं। 3 चीजें इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक, रेडी घर खरीदिए, अंडर कंस्ट्रक्शन मत खरीदिए। प्लीज डू नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ फ्यूचर प्रॉमिस हाउस एवर रोजी इट मे बी। इंश्योर द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज गुड, क्योंकि ये घर आपको अगले 50-60 साल सर्विस दे पाए। एंड बाय एट अ फेयर प्राइस, अच्छे से तहकीकात करके, जांच परख कर। अगर इफ यू आर एबल टू मीट दीज 3 कंडीशंस, देन लोकेशन, फ्लोर, शहर एटसेट्रा, दे आर एक्चुअली ऑफ वेरी लेस इंपॉर्टेंस। ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग राइट इज बेसिकली अ श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर इन लाइफ। इसलिए पहले आप घर खरीद लीजिए, नहीं खरीदा है, जिन्होंने खरीद लिया है, एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड उसके बाद वो बाबा जी जैसे कहते हैं, जीवन में रुकी हुई कृपा आनी शुरू हो जाएगी। We'll move on to the next. For your children's higher education, marriage, although I'm repeating it, but फिर भी एक बार कर देते हैं। Yes, Urvi, it is. मैं आपके चैट के आंसर एक बार बाद में दूंगा। For meeting the obligations of your children's marriage, education, choose out of these 2 options. या तो कोई इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में SIP कर दीजिए। अगर आप थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपके पास में समय है, आपका इस तरह का टेम्परामेंट है, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का, एडवाइजर का फीस का पैसा बचा पाएंगे। और अगर वो नहीं है, आपको रियल एस्टेट में कंफर्ट है, तो कोई छोटा रियल एस्टेट से स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी पढ़ाई के लिए कहीं पे 1 बेडरूम खरीद लिया और उसका आप EMI ले लिया, चाहे आपने 15,000 रुपए का SIP कर दिया, लगभग एक सी बात है। 1 बेडरूम ले लिया, कोई स्टूडियो ले लिया, कोई छोटी जमीन का टुकड़ा ले लिया, कोई छोटी दुकान ले ली। इन सब ऑप्शंस में आप अगर लगातार लगे रहेंगे, 10 साल, 15 साल आप इन्वेस्ट करके रखेंगे, आप अपने जो मेजर खर्चे, इनके लिए सफिशिएंट फंड्स क्रिएट कर लेंगे। 20,000 रुपए का SIP महीने में ठीक ठाक सा, अगर आप उसको निकालेंगे नहीं, बहुत रिस्की नहीं भी होगा, तो भी आपको वो 15 साल में 80 से 90 लाख रुपए का रिटर्न दे जाए। सेम वुड बी विद अ प्रॉपर्टी ऑफ अराउंड 20-22 लाख, जो इतना कैपिटल एफिशिएट कर जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो है, हर साल अपना कमिटमेंट अमाउंट बढ़ाइए। अगर मैं इस साल महीने का 20,000 रुपये सेव करता हूँ, तो अगले साल 22,000 होना चाहिए, 23,000 होना चाहिए, 24,000। नेक्स्ट पॉइंट, ये उन ऑफिसर्स के लिए है या उन प्रोफेशनल्स के लिए जिनको पेंशन का सपोर्ट नहीं है, say the short service officers, those who do not have the government pension. तरीका यहाँ भी वो है, आपको you'll have to either opt for a SIP in equity based mutual funds, या कोई छोटा रियल एस्टेट एक भी लिया, कुछ 5-7 साल बाद दूसरा लिया, इस तरह से एसेट बेस क्रिएट करते जाना पड़ेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है, अगर आप उनमें से हैं जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास में पेंशन नहीं है, तो ये फिर आपका घर खरीदने के बाद में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क बन जाता है। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन प्रोवाइडिंग फॉर योर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन एंड their marriage and all, because
देखिए ना, यूएस में देखिए, व्हाई डू यू थिंक द अमेरिकन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड मैरिज? नॉट बिकॉज दे लव देयर किड्स लेस, बिकॉज उनकी इकोनॉमी उनको अलाउ नहीं करती। वहाँ पेंशन होता नहीं है, अपने ही आप खुद का जुगाड़ करना पड़ता है। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, बिकॉज आप, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी, एक समय आएगा पैसा नहीं कमा पाएंगे, आपके एसेट्स ही आपको हेल्प करेंगे। So again, if you are investing say around 20K a month for 25 odd years, either it is in a property or through SIP, आपका 3.5-4 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाएगा, जिससे आपको पेंशन बेनिफिट्स मिल सकते। एंड द फाइनल पॉइंट विच आई वांटेड टू टच अपॉन वाज टैक्स प्लान। टैक्स अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो, या आप उसके लिए पढ़ाई नहीं करते, या समय नहीं लगाते, या किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट नहीं करते, सो आप अपना कितना मेजर पैसा तो वैसे ही खराब कर देंगे। सो वेल्थ क्रिएशन में वन हैज टू बी एक्सट्रीमली टैक्स एफिशिएंट। वॉरेन बुफे फाइल्ड इज फर्स्ट, आई एम कमिंग टू दैट। वॉरेन बुफे फाइल्ड इज फर्स्ट टैक्स रिटर्न एट द एज ऑफ 30। समझे तो सही। एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एवेन्यूज टू हेल्प वन सेव टैक्सेस, and if you're not utilizing these taxes, these legal provisions for saving taxes, then you're just losing money because of lack of awareness. तो जो स्टैंडर्ड 80C है, जिसमें आपका 1.5 लाख रुपया साल का आप इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आप टैक्स बचाते हैं, उसके अलावा कम से कम एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में एडिशनल 50,000 रुपया साल का बचाए, वो आपको हेल्प ही कर रहा है। आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में है, एटलीस्ट जो टैक्स आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो तो आपको एनपीएस अकाउंट से डायरेक्ट बचत हो गया, उतना तो आपको उसी वक्त रिटर्न मिल गया। इसके अलावा आप साल का 60-65 हजार रुपया टैक्स किसी ना किसी प्रॉपर्टी लोन के थ्रू भी बचा सकते हैं। तो कोई छोटा प्रॉपर्टी लीजिए, वहां से भी बचाइए। बाकी और थोड़ा सा और एज होगी, आपके पास में बेटर इनकम्स आने लगते हैं, सो यू कैन पे प्रीमियम फॉर योर पेरेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, उससे भी टैक्स बच जाता है। अपने बच्चों के एजुकेशन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं उससे टैक्स बच जाता है। कहने का मतलब है कि आप अच्छे से टैक्स रूल्स को पढ़ें, अमेंडमेंट्स जो आते रहते हैं समय समय पर उनको पढ़ें। बी टैक्स स्मार्ट एंड टैक्स सेविंग। जितना आप टैक्स सेवी होंगे उतना ही आपको फायदा होगा। टैक्स सेव्ड इज वेल्थ क्रिएटेड। क्लियर? आप सरकार को 30% टैक्स दे रहे हैं, उससे अच्छा, या 20% टैक्स दे रहे हैं, उतना किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके वो तो डायरेक्ट आपका रिटर्न हो गया। So tax planning should be a very very central part of what you are trying to do in your financial planning. अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा, मैं खुद भी परेशान होता हूँ, आई एम गोना बी रैंटिंग अ बिट, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक जो चीज जो आजकल बहुत मुझे बेचैन करती है वो है, इवन इन द ग्रुप्स एंड ऑल डिस्कशन है, सब लोग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो एक बड़ा अट्रैक्टिव सा टॉपिक है ना। आपको हर कोई बोलता है मैं आपको हाई रिटर्न दिलवा दूंगा, तो उससे बड़ा आकर्षण क्रिएट होता है, वो लालच पैदा होता है कि बस अब तो मैं येस्टरडे में ही अमीर बन जाऊँ। क्योंकि हाई रिटर्न्स आर अ शॉर्टकट, लेकिन एक्चुअली जो आपका फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आएगा, सिर्फ हाई रिटर्न से नहीं आएगा। मैं आपको ये भी एक एनालॉजी से ही समझाता हूँ। गुड हेल्थ जो है, एक अच्छी सेहत will not come by following a fancy diet for some time, or going to a fashionable gym. And no, if you want to achieve good health in life, you will have to probably quit or not smoke, have a controlled intake of alcohol, adequate sleep, keeping your weight in check, good social life, and a robust mental health. बट मेजोरिटी ऑफ पीपल व्हाट दे थिंक, यार फ्राइडे इवनिंग पार्टी करेंगे, संडे को थोड़ा दौड़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में चल जाता है बट लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। सिमिलरली, मतलब आपको अगर मसल्स मजबूत बनाने हैं तो वजन उठाना पड़ेगा। स्टेरॉइड लेकर के आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से फाइनेंस के अंदर वेल्थ क्रिएशन नीड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, एंड इट इज पेनफुल बट अनअवॉइडेबल। और अनुशासन में दिक्कत होती है, तो हम, अगर इफ ऑल ऑफ यूर फौजीज, सुबह 6 बजे पीटी उठने में दिक्कत होती है, बट पैसा बचाना जरूरी है। अगर आप पैसा बचाएंगे, मितव्ययी रहेंगे, धीरे धीरे आपकी वेल्थ आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। आजकल का नैरेटिव देखिए, छोटी बचत करनी है तो
इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, बड़ी बचत करनी है, तो वो जहाँ सेल लगी है अमेजोन बिग डे सेल पर, सो वी आर लर्निंग टू स्पेंड, नॉट टू सेव. Therefore, it is very important that you learn to save. The good old habits which our parents used to tell us. So focus सिर्फ रिटर्न पे मत लगाएं कि मैं ऐसा कहाँ अपना पैसा लगा दूं जहां से मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाए. Also focus how much more amount I can invest. If I'm investing say 20,000 rupees this month, is it a possibility I can invest 20,000 50 rupees next month? और कितना ज्यादा देर तक मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ, कितना जल्दी मैं अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ. गिव योरसेल्फ दैट पेन ऑफ लिविंग लेसर देन व्हाट प्रॉब्ली योर मींस नाउ. डीए की एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट आई, गवर्नमेंट ने डीए अनाउंस किया, तो नेक्स्ट अगला फोन लेने की बजाय पुट इट इन योर एसआईपी. इस साल इंक्रीमेंट लगेगा, उसका एक सर्टेन पैसा मुझे एसआईपी में डालना ही डालना है. या प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसकी ईएमआई बढ़ाते हैं ताकि लोन जल्दी. इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी व्हिच इज गिविंग मी रेंट, उस रेंट को री इन्वेस्ट करते हैं सो दैट आई एम एबल टू ईदर पे ऑफ माई लोन फास्टर और क्रिएट एन एसआईपी. उससे बाजार नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ बना रहा हूँ. विचलित नहीं होना है, पैसा निकाल करके नहीं. आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए, लंबे टाइम तक रखिए, एंड फोर्स योरसेल्फ टू डू इट. बी रेस्ट assured, even with lesser rate of interest, you will be able to meet all your financial obligations and be a wealthy individual. ज्यादा लेक्चर नहीं करूंगा, आगे चलता हूँ. Last is the summary. Simple. Start with buying your own house. If you're not in receipt of government pension, then that's the next problem you should be addressing. If you're not covered by AGIF and ECHS, अगर आप फौज छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हैं, या पीएमआर है और आपका एजीआईएफ कवर खत्म हो रहा है और अभी आप 44-45 साल के हैं, so parallelly buy a term insurance and family floater, and then create assets, which is mutual funds and small properties for meeting the other obligations, which is your children's education, marriage. Save maximum possible tax. And the last line, be strict with your financial discipline. Gotta focus on your